ਅੱਜ 2024 ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ 40 ਕਰੋੜ ਆ ਆਲਮੋਸਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਆਈਡੀਆ टू एग्जीक्यूशन पहला स्टेप की सीगा? हम रोबोट्स नहीं बनाते हैं, हम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो कि थर्ड पार्टी रोबोट्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं। अभी जो रोबोट्स हैं वो स्मार्ट नहीं है। अभी के रोबोट्स आर लाइक एक पर्सन जिसके पास आंख और दिमाग नहीं है, और अब हम दे रहे हैं आंख और दिमाग। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਆ ਕੇ 10-10 15-15 ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਗੇ? इंडिया में आज की तारीख में 12 लाख वेल्डिंग प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है। इंडिया में इतनी शॉर्टेज है, यूएस में 4 लाख की शॉर्टेज है। ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯੂਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਅਰਨ ਦੈਟ ਮਚ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ? स्टार्टअप अर्निंग के लिए होता नहीं है, अर्निंग इसका बाई प्रोडक्ट है। वो जॉब करना का भी पर्पस मेरा यही था कि मैं उतना पैसा सेव कर पाऊँ कि मैं अपना काम शुरू कर पाऊँ। ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕੁਇਟੀ ਡਾਇਲੂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਕ ਵੇਚਿਆ? हमने जस्ट अंडर 1 मिलियन USD रेस की। ਆਲਮੋਸਟ 8 ਕਰੋੜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਟੂ ਫੰਡਿੰਗ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਚ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ प्रोसेस? इन्वेस्टर्स सिर्फ इनिशियली सिर्फ 2 ही चीज़ देखते हैं, एज अ पर्सन आप में एग्जीक्यूशन की क्या कैपेबिलिटी है, आप कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो। एफर्ट मारना पड़ता है, घर बैठे तो कोई इन्वेस्टर नहीं देगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? एज फंडामेंटल विजन तो हमारा ये है कि हम बिगेस्ट टेक कंपनी बने। आई एम नॉट सेइंग इंडिया, ਇਨ ਵਰਲਡ, इन द वर्ल्ड, ग्लोबली। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਤੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿੰਨੇ % ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ? पैसा कितना है उससे इतना मैटर नहीं करता, आपका अपना विजन क्या है, वो बहुत बड़ी बात है। वो आपको खराब या ठीक करेगा, वरना तो 1 करोड़ में ही बंदा पागल हो सकता है। ਮਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल। ਅਨੁਬੀ ਖੰਡੇਲਵਾਲ, ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਟੈਰਾਫੈਕ ਐਂਡ CEO। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਡਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਮ, ਟੈਰਾਫੈਕ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? तो ये एक्चुअली है टेरा फैक्ट्रीज। अभी अगर आप बात करेंगे कि इंडस्ट्रीज में सबसे अभी क्या चल रहा है, इंडस्ट्रीज में डेटा सबसे बड़ी चीज़ है। जो इंडस्ट्रीज आपस में, मशीन्स आपस में बात करती हैं, डेटा का फ्लो चलता है। तो हम डेटा की अगर बात करते हैं तो आपके पास पेन ड्राइव होगी ना, कितने GB की, 4 GB, वो गीगाबिट्स होते हैं, गीगाबाइट्स या गीगाबिट्स, ऐसे ही टेराबाइट्स। तो टेरा फैक्ट्रीज आर द फैक्ट्रीज विच आर ऑपरेटिंग विद दैट काइंड ऑफ डेटा, टेरा लेवल ऑफ डेटा। आई थिंक नेक्स्ट हमारे जैसे गीगा फैक्ट्रीज हैं, ऐसी टेरा फैक्ट्रीज। तो टेरा फैक्ट्रीज का स्मॉल इज टेराफैक। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਟੈਰਾਫੈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ 2021 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, हाँ जी ਤੇ ਅੱਜ 2024 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ 40 ਕਰੋੜ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ 40 ਕਰੋੜ ਆ। जी। ਲਾਈਕ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ? ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਟੈਰਾਫੈਕ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ? हम एक्चुअली ऑपरेट करते हैं प्योर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में। आप जितनी भी इंडस्ट्रीज अपने आसपास देखोगे, आप जो कपड़े पहन रहे हो वो एक इंडस्ट्री में बन रहा है, आप जूते पहन रहे हो इंडस्ट्री में, आप जो खा रहे हो, सब कुछ इंडस्ट्रीज में कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होती है, पैकेजिंग होती है, बनता है। चाहे गाड़ी है, ऑटो इंडस्ट्रीज ले लो, फार्मा इंडस्ट्रीज ले लो, सारी इंडस्ट्रीज है। तो हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन भी करते हैं। कहाँ पे रोबोट्स लगा सकते हैं, कहाँ पे एक स्टैंडर्ड छोटा कोई ऑटोमेशन कर सकते हैं, कन्वेयर्स चल रही हैं उनका ऑटोमेशन कर सकते हैं। और इस फील्ड में मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम से हूँ। मैं इंडिया से पहले एक्चुअली 6 साल यूके में थी। तो मैं 2015 में यूके गई थी मास्टर्स करने के लिए इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। फिर मैंने वहाँ पे जॉब करी सीमेंस में एज अगेन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट, डिजिटलाइजेशन, जो ये सारे वर्ड्स हैं मैं यूज़ कर रही हूँ। तो वहाँ पे मैं 5 इयर्स थी और उसमें मैंने इन सब चीज़ में थोड़ी एक्सपर्टीज़ अपनी करी। पैरेलली मैंने इंडिया के बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में खुद काम किया है, शॉप फ्लोर्स पे उनके।
रोलिंग मिल्स जो होती हैं जहाँ सरिये बनते हैं वहाँ पे किया है, जहाँ पेपर बनते हैं पेपर मिल्स, शुगर मिल्स, इन सब पे मैंने खुद काम किया है। और मैं इंडिया वापस आई थी 2020 के एंड में। फिर 21 के अराउंड मुझे फिर वापस जाने का था प्लान, बट तब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे वापस नहीं जाना है, आई वॉन्ट टू स्टे बैक। और यहीं रुक के फिर मैंने उस टाइम पे टेरा पैक स्टार्ट किया। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਆਈਡੀਆ ਟੂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀਗਾ? तो एक्चुअली पहले तो सिर्फ कंपनी रजिस्टर कर दी थी। आप अगर ऑनलाइन देखोगे तो मुझे नाम पसंद था, मैंने सबसे पहले कंपनी रजिस्टर कर दी। तब तक मेरे माइंड में था नहीं कि एग्जैक्टली कैसे करना है, क्या करना है। मुझे बस इतना पता था मुझे इस स्पेस में करना है क्योंकि स्पेस मुझे पसंद है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की। हमने एक्चुअली काम करना शुरू किया जनवरी 2022 में। उससे पहले कुछ काम नहीं था। आई जस्ट रिजाइन एंड आई सैट, मतलब मैं रिजाइन करके बैठ गई कि देखते अब क्या करना है। तो मैंने 1-2 इंटर्न्स हायर करे। मैं अपनी काफ़ी सेविंग्स वगैरह करके आई थी, तो मुझे था ये सारा मुझे अब अपने स्टार्टअप में डालना है। मैंने सारा अपना मनी उसी में पोर किया। और फिर माइंड में आया कि अभी 2 चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में लैग करती हैं, एक स्किल और एक एक्चुअल ऑटोमेशन। इंडियन इंडस्ट्रीज़ में स्किल की भी प्रॉब्लम है, लोगों को आता नहीं है, ऊपर से एक्चुअली में मशीन वगैरह भी ऑटोमेटेड नहीं है। तो सबसे पहले मेरा था कि हम काम करेंगे स्मार्ट लर्निंग की तरफ, कि स्किलिंग कैसे कर सकते हैं बच्चों की। फिर हम करेंगे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद हम मूव करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में। तो मेरा पहला स्टेप था पावरिंग स्मार्ट लर्निंग। अगर वेबसाइट देखो आपको दोनों दिखेंगे, पावरिंग स्मार्ट लर्निंग एंड पावरिंग स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो स्टार्ट वहाँ से किया था। हम छोटी छोटी ऑटोमेशन की वो बनाते थे, ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स या ट्रेनिंग रिग्स, जिसमें छोटे कन्वेयर सिस्टम्स हैं, छोटे रोबोट्स हैं, दुनिया भर के सेंसर्स हैं, बच्चों को ट्रेन करने के लिए कि आप किस तरह से ये सारी चीज़ें दे कम टुगेदर और एक इंडस्ट्री चलती कैसे, ऑटोमेट कैसे होती है। ये छोटे छोटे स्टेशन हमारे IIT रोपड़ में भी लगे हैं, तो वहाँ से स्टार्ट किया था। उस टाइम पे आई वॉज द सोलो फाउंडर। मैं टेरा पैक में सोलो फाउंडर थी। धीरे 3-4 लोगों की टीम इंटर्न्स वगैरह की शुरू करी और वो ही कर रही थी लास्ट ईयर तक, जब फिर हमने स्विच किया और हमने स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में सारा फोकस हम एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग में ही ले आए। एंड मेरा अब एक को फाउंडर भी है। तो उसके बाद मैंने कुछ लोगों से बात करी। ये पर्सन जो मेरे को फाउंडर हैं अमृत सिंह, इनको मैं जानती बहुत सालों से हूँ, 14-15 सालों से। बट वो अपना कर रहे थे AI में काम। और जब हमने बहुत बात की तो समझ में आया कि मैं हार्डवेयर में इंडस्ट्री में करती हूँ, वो AI में करते हैं। अगर हम मिलके करेंगे तो हम एक्चुअली बहुत फंडामेंटली अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं फ्रॉम इंडिया, जो भी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फिर हमने डिसाइड किया कि हम साथ में करेंगे। तो he came in टेरा पैक। हमने साथ में फिर he became the co-founder। उसके बाद हमने अपनी फंड रेज जर्नी शुरू करी इसी साल अप्रैल में। और वहां से फिर ये पूरा चेंज होके शुरू हुआ। मुझे तो खुद दिन से याद भी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या क्या थे, बट स्मॉल स्टेप्स, जैसे कि आई थिंक 22 में सबसे पहले मैं एक इवेंट पे गई थी जहाँ पे आई मेट सोमवीर फ्रॉम इनोवेशन मिशन पंजाब। और वहाँ से मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि स्टार्टअप्स होते क्या है, क्या चलता है। फिर हम इन लोगों की टीम ने थोड़ा मुझे इनिशियली काफ़ी हेल्प की, सपोर्ट की टू अंडरस्टैंड कि स्टार्टअप्स होते भी क्या है। मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं तो UK में थी, मैं जॉब कर रही थी। तो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज, करना क्या होता है, कैसे करना होता है, इससे थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगा, बट धीरे धीरे समझ में आने लगी चीज़ें। अब हम लोग टेरा पैक एज अ ब्रांड फुल टाइम हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं टू मेक रोबोट्स स्मार्ट। तो वी गिव इट कंप्यूटर विजन, जिससे वो देख पाता है कि क्या है मेरे आसपास, एंड उसके बाद इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे वो अपने आप चीज़ें कर पाता है। जैसे कि एंड मेजरली फॉर इंडस्ट्रीज, जैसे कि वेल्डिंग। बहुत इंडस्ट्रीज में वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग हार्मफुल होती है, लोगों को बहुत आईज में रेटिना स्कारिंग हो जाती है, लोग मिल नहीं रहे हम वेल्डिंग करने के लिए। तो वेल्डिंग के लिए रोबोट्स जो अपने आप देख के कर पाएंगे। देन पाउडर कोटिंग, पेंटिंग, ग्लूइंग, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बट हम लोग अभी वेल्डिंग पे फोकस कर रहे हैं। सो अ प्लेटफॉर्म विच इज इनेबल्ड बाय विजन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे कि रोबोट्स अपने आप सारे काम कर पाते हैं। हम रोबोट्स नहीं बनाते हैं, हम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो कि थर्ड पार्टी रोबोट्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं। ਓਕੇ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਰੋਬੋਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ UK 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, UK 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ I'll be able to earn that much ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ? आई थिंक
स्टार्टअप सिर्फ स्टार्टअप अर्निंग के लिए होता नहीं है। अर्निंग इसका बाई प्रोडक्ट है। हम सब चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कमाए, हमारे स्टार्टअप की बहुत वैल्यूएशन हो, बट एक्चुअली स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए मनी फंडामेंटल नहीं होता है। तो इतनी अच्छी सैलरी को छोड़, वो जॉब करना का भी पर्पस मेरा यही था कि मैं उतना पैसा सेव कर पाऊँ कि मैं अपना काम शुरू कर पाऊँ। तो हमेशा से मेरे माइंड में तो यही था। हैविंग सेड दैट, एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि वो मोमेंट जब आपने एक्चुअली छोड़ा वो बहुत बड़ा रिस्क पॉइंट होता है। तो उस टाइम पे बस मैंने ये सोचा कि अगर चल गया तो स्काई इज द लिमिट, अगर नहीं चला तो भी 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा, मैक्सिमम मेरा पैसा ही जाएगा, बट मुझे दोबारा अच्छी जॉब तो मिल ही जाएगी। तो ज़्यादा लूज करने के लिए है नहीं मेरे पास, जॉब भी दोबारा मिल जाएगी, पैसा जितना जाएगा उतना फिर कमा लेंगे, तो फंडामेंटली क्या लूज किया, गेन करने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए स्टार्ट किया था। और मुझे भी पता था कि जिस आइडिया से मैं शुरू करूंगी वो चेंज भी होता जाएगा। मेजरली ये फील्ड मेरे को पसंद है तो मैं इस फील्ड में काम करूंगी, मैं किसी आइडिया पे इतना फिक्सेट नहीं करती हूँ। उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं किया था, अब हम थोड़ा ज्यादा फोकस करके काम कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡੀ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅਰਨ ਕੀਤਾ? रेवेन्यू हमने कंपनी में पहला अर्न किया था लास्ट ईयर। ये रेवेन्यू था हमारा उसका स्मार्ट लर्निंग का, जब हमने रिग्स वगैरह अपनी बेची थी। अब हम जो करंट प्रोडक्ट कर रहे हैं ये अभी हम प्री रेवेन्यू पे हैं। और सैलरी मैंने लेनी शुरू करी थी अप्रोक्सीमेटली जब पहला रेवेन्यू अर्न किया था, उसके बाद बेयर मिनिमम, मतलब बस इतना कि थोड़ा बहुत अपना चलता रहे उस हिसाब से। बीच के 2.5 साल तो कुछ भी नहीं लिया था, सिर्फ लगाया था 2.5-3 साल। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਵਰਕਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੇ EMPLOYEES ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋ ਹਾਲੇ? तो अब हम फंडेड हो गए ना, पहले तो मैं अपने से देती थी जो सेविंग की हुई थी, तब लोग कम थे, 6-7-8 लोग थे। अब हमारी टीम 20 की है, जनवरी में 23 हम टच कर जाएंगे। अब हम फंडेड है, थैंक ग्रेस, गॉड्स ग्रेस की हो गया जैसे भी। ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਇਟੀ ਡਾਇਲੂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਕ ਵੇਚਿਆ fund पे? हमने ब्रॉडली 20% अप्रोक्सीमेटली डाइल्यूट किया है कंपनी का, और हमने जस्ट अंडर 1 मिलियन USD रेस किया है। ओके, ऑलमोस्ट 8 करोड़ इंडियन रुपीस। हाँ, 7.5 करोड़ के बीच, हाँ 7.5 से 8 के बीच में। ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੋਊਗੀ। हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? एक्चुअली प्रोडक्ट हमारा वो ऑलमोस्ट रेडी है। जो फर्स्ट प्रोडक्ट था हमारा उसमें साइट में हमारी, वो ऑलमोस्ट रेडी है, हमारी टेस्टिंग्स लगातार चल रही है। तो हमारा थोड़ा ये फंडामेंटली चलता है बिकॉज हम टेक कंपनी है, ऐसा ना हो कि हम सिर्फ लैब में ही बनाते रह जाए। तो इसलिए हमने 2-3 इंडस्ट्रीज से बात करी है जहाँ पे हम पायलट्स करेंगे। तो हम ये अपना पहला जो प्रोडक्ट बन गया है इसको पायलट की तरह इन इंडस्ट्रीज में लेके जा रहे हैं कि इनका वर्क फ्लो भी ना इफेक्ट हो, बट एक साइड पे हम पायलट करके अपने प्रोडक्ट को उन इंडस्ट्रीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट बना दें। फिर वो हम एज अ प्रोडक्ट मैसिवली रोल आउट करेंगे। तो अभी 3-4 महीने हमारा पायलट फेज चलेगा। ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰੋਬੋਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਾਇਲਟ ਮਾਡਲ ਥੋੜਾ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ, तो ये अभी नहीं है। अभी ऐसा है कि हम रोबोट भी प्रोवाइड कर देते हैं। हमारी 1-2 वेंडर्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन हो चुकी है, तो हम उनसे रोबोट करके अपना सिस्टम लगा के पूरा का पूरा यूनिट इंडस्ट्रीज को अभी दे रहे हैं। बट जो आपने बोला हम करने वही वाले हैं। ਮਤਲਬ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰੋਬੋਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਚ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੋਬੋਟਸ ਨੂੰ। नहीं, टारगेट हम दोनों करेंगे। जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उनको तो हम बोलेंगे आप अपना लगाओ, अपना इफेक्टिव करो, आपका काम बढ़ जाएगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी। आज अगर आप 200 करोड़ पे हो तो आप 300-400 करोड़ का काम भी उठा सकते हो, क्योंकि एक रोबोट इफेक्टिवली 3-4 लोगों का काम करता है। और जो लोग के पास नहीं है उनको हम जाके बताएंगे कि आप इनसे एक ये चीज ले सकते हो और हमसे लेके कंबाइन आपका प्रोडक्ट बनेगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਸਟਮਰਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਲਾਈਕ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਸੇਲਸ ਟੀਮ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? अभी सेल्स टीम नहीं है, मैं ही हूँ सेल्स में, क्योंकि मैंने आपको ऐसे बताया कि मैं बहुत इंडस्ट्रीज में पहले काम किया है, तो मेरे एक्चुअली कनेक्ट्स हैं, अभी लोकल कनेक्ट्स काफ़ी हैं। मुझे पता है किस इंडस्ट्री में ज़रूरत होती है, किस इंडस्ट्री में ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं जिनमें है ज़रूरत, मेरे कनेक्ट्स हैं, मैं उनसे आके बात करती हूँ। एंड क्लियरली वो पता है कि उनको ज़रूरत है, तो वो लोग बोलते हैं हाँ हाँ आप आके कर लो। फिर जब हम एक्सपैंड करेंगे तो सेल्स टीम लगानी पड़ेगी। अगर हमको जब साउथ में जाएंगे, हम साउथ इंडिया टारगेट करेंगे, तब भी सेल्स टीम लगानी पड़ेगी।
ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੁੱਕ ਅਪ ਟੂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲਾਈਕ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ मॉडल ਮੰਨਦੇ होंगे? काम के हिसाब से इंडस्ट्री में तो बहुत सारे वो हैं, अलग अलग कंपनीज की अलग अलग वो चलती हैं, बट एज अ पर्सन बहुत लोगों को पसंद है। मेरे को एज अ वर्क एथिक की अगर मैं बात करूँ तो मुझे इलॉन मस्क का वर्किंग स्टाइल इस चीज़ में पसंद है, वेयर व्हाट ही डज इज अगर करना है तो एग्जीक्यूट कर दो, फिर देखेंगे। तो आई लाइक कि एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, प्लानिंग में मत लगे रहो, टेस्टिंग में मत लगे रहो, एग्जीक्यूट कर दो, और वो मैंने देखा है कि वही रिजल्ट आता है। तो दैट इज वन पर्सन जिससे मैं दो, एक एग्जीक्यूशन और एक ऑब्सेशन फॉर वर्क, ये दो चीजें मैं सीखना मतलब सीखती हूँ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਗੈਪ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ 4 5 7 ਸਾਲ ਉਹੀ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਸੋਚੀ ਜਾਣਗੇ ਸੋਚੀ ਜਾਣਗੇ ਸੋਚੀ ਜਾਣਗੇ। ਐਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੋ ਆਈਡੀਆ ਵਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 10 ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। बिल्कुल। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? तो ये भी अगेन इंटरेस्टिंग है। मैंने एक्चुअली पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, यूआईटी से इंजीनियरिंग, बट मेरी इंजीनियरिंग थी बायोटेक्नोलॉजी में। मैं उस टाइम पे खेलती थी बैडमिंटन, मेरा सारा फोकस बैडमिंटन पे था। मैंने चंडीगढ़ स्टेट रिप्रेजेंट किया है नेशनल्स में 3-4 साल, 5 साल ज़्यादा लगातार, और मैंने बायोटेक की। उसके बाद 4 साल बाद मुझे पता लगा कि मुझे एक्चुअली इतनी पसंद नहीं है फील्ड। मतलब इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, आई वॉज ऑलवेज अ गुड स्कोरर, मेरी पढ़ाई में हमेशा मेरे नंबर अच्छे आते थे, तो वो तो कर लिया, बट इसेंशियली अगर मुझे इस फील्ड में काम करना है तो मेरा मन नहीं था, तो मैंने स्विच कर दिया। और मैंने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मुझे इसलिए पता चला, मेरे पापा की अपनी इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग की, पैनल्स वगैरह की, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा सा बताया कि आजकल मार्केट में आ रहा है, तुम देख लो, तुम्हें समझ आता है। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, अपने आप सेल्फ लर्निंग 1-2 कोर्सेज करे, तो मुझे पता चला कि मुझे यही पसंद है। फिर मैंने सोचा कि मैं मास्टर्स करती हूँ, तो मैंने कैट भी किया था क्लियर उस टाइम पे, क्योंकि एक ट्रेंड चलता है कि कैट कर लो। मेरे को 2-3 IIM से कॉल्स आए थे, बट बाय दैट टाइम आई रियलाइज कि मुझे एक्चुअली ये फील्ड ज़्यादा पसंद है, मुझे मास्टर्स करके इसमें आगे करना है, मैनेजमेंट तो बाद में होता रहेगा। फिर इसलिए मैं यूके गई थी मास्टर्स करने के लिए। मास्टर्स मेरी थी इसी में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, तो मैंने स्विच किया अपनी फील्ड को। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? बीटेक से तो बिल्कुल ही नहीं है, बीटेक तो मेरी बायोटेक में थी। उसके बाद मैंने अपने को काफ़ी सेल्फ एजुकेट किया, यूट्यूब हेल्प्स बहुत सारा। उस टाइम पे यूट्यूब इतना नहीं था, फिर भी था, और ऑनलाइन बहुत चीज़ें मिलती थी, बुक्स बहुत थी, तो मैंने काफ़ी कुछ अपने को सेल्फ एजुकेट किया है। आई थिंक मेरी लर्निंग सबसे ज़्यादा आती है प्रोजेक्ट से। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने वो इस सेम चीज़, आइडिया टू एग्जीक्यूशन, मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स ले लिए कि कर लेते हैं, करके देख लेते हैं। तो मैंने 1-2 लोगों की टीम बना ली थी अपनी, जो इंडस्ट्री में हम जा के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते थे। तो मेरी मैक्सिमम लर्निंग हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट से आई है, इंडस्ट्री के, जहाँ पे अलॉट इज एट स्टेक, नॉट कॉलेज प्रोजेक्ट्स। वहीं से मुझे हुआ। फिर जो मैंने मास्टर्स की है उससे मुझे काफ़ी और हेल्प मिली, बट अगेन मेजर लर्निंग कम्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स आई डिड, एंड जो मैंने सीमेंस में काम किया था उसका सारा ऑन फील्ड ही मेरी लर्निंग है। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੈਲਫ ਲਰਨਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? देखिए, करने को तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आखिरकार इंसान ने सब कुछ खुद ही सीखना है, बट हेल्प हो जाती है। मुझे लगता है आप मैकाट्रॉनिक, मैकेनिकल, ये चीज़ें अगर आप अपने एजुकेशन में पढ़ पाएँ, बहुत सारे अब तो इंस्ट्रूमेंटेशन, बहुत सारे वो आ रहे हैं, सब्जेक्ट्स आते हैं करने के लिए, तो हेल्प करता है। मुझे भी पढ़ना तो पड़ा ही था ना, चाहे खुद पढ़ना पड़ा, बट पढ़ना तो पड़ा ही था। तो आप चाहे खुद पढ़ो, चाहे आप किस कॉलेज में जाके पढ़ो, आजकल कॉलेजेस इतने एडवांस्ड हो गए हैं, दुनिया भर की इनकी लैब्स होती हैं, तो हेल्प तो मिलती है। करना चाहिए अगर मौका लगे। नहीं कर पाए तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि खुद से नहीं कर सकते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਟੂ ਫੰਡਿੰਗ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਚ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ प्रोसेस? बहुत ही ज़्यादा लगे रहना पड़ता है। मतलब अगर पर्टिकुलरली अगर आपने पहले कभी नहीं किया है, जिन्होंने पहले किया है उनको तो पूरी जर्नी पता है, जिन्होंने कभी पहले नहीं किया है
लगे रहना पड़ता है इन द सेंस आपको पहले अपने बिजनेस में कन्विक्शन होना चाहिए। आपकी स्टोरी तो आपको पता हो सबसे पहले कि आप करना क्या चाहते हो। आई थिंक इन्वेस्टर्स सिर्फ इनिशियली सिर्फ दो ही चीज़ देखते हैं, एज अ पर्सन आप में एग्जीक्यूशन की क्या कैपेबिलिटी है, आप कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो। उन्हें आइडिया से इतना फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, आप किस स्पेस में हो, मार्केट में हो। अगर मार्केट अपने आप में बहुत बड़ा है और आप एक ऐसे पर्सन हो जो एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो आप एक नहीं तो दो नहीं तो तीसरे आइडिया तक तो कर ही दोगे। तो आपकी स्पेस बड़ी होनी चाहिए। इन्वेस्टर यही देखते हैं कि आप किस मार्केट में हो और एज अ पर्सन आपकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, आपकी एक बैकग्राउंड स्ट्रेंथ क्या है, आपकी टीम कैसी है, आपका फाउंडर को फाउंडर्स कैसे हैं। अगर आप उतना कर दोगे और आपका एक सॉलिड वो है, स्पेस है जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हो, तो वो इनफ होता है इनिशियल फंडिंग लेने के लिए। मतलब मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्ट भी कोई इतना ज़रूरी है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर प्रोडक्ट नहीं है, आपको लगता है आपको प्रोडक्ट ही बनाने के लिए पैसा चाहिए। कई केसेस में होता है डीप टेक प्रोजेक्ट्स में कि आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसा चाहिए होता है। वो आपको अपनी कन्विक्शन पे, अपनी टीम स्ट्रेंथ पे और एक अच्छे मार्केट स्पेस में मिल जाएगा। एफर्ट मारना पड़ता है, घर बैठे तो कोई इन्वेस्टर नहीं देगा। हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब इस साल फंड रेज शुरू किया, हम इतनी बार बैंगलोर गए, इतनी बार हम मुंबई गए, इतने लोगों से बात करी है, मुझे तो अब याद भी नहीं है कितने लोगों से बात की है। बट बेसिकली बी देयर, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, बात करो, अपना बताओ कनेक्शन से। आई थिंक दैट वर्क्स। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ? एक तो जो मेरा को-फाउंडर है अमृत, वो आईआईटी दिल्ली का है और बहुत सारे आईआईटी के जो एलुमनाई हैं वो लोग आजकल इस स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं। दे आर देमसेल्व्स वीसीज या वो इंडियन फंड्स में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा मुझे वहाँ से हेल्प मिल गई थी। इनोवेशन मिशन पंजाब में एज़ आई टोल्ड यू मैं पहले से थी, तो यहाँ पे इन्होंने मेरे को कुछ इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट किया था और फिर आप एक से बात करते हो, वो आपको दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, फिर वो आपको तीसरे से कर देते हैं। तो इनिशियली मैं हमारा एक पता नहीं है, मुझे याद नहीं है, उस एक फंड से हमारी बात हुई। उन फंड ने हमें एक पर्सन से कनेक्ट किया, दिस पर्सन इज इन बैंगलोर, और हम उनसे बात की एंड एज एन एडवाइज़र हमने उनको ऑन बोर्ड ले लिया। और फिर वो एज एन एडवाइज़र आए और वो क्योंकि बैंगलोर के थे और इस फील्ड में बहुत टाइम से, तो उन्होंने हमें बहुत सारे लोगों से फिर कनेक्ट कराया। फिर उसके थ्रू बस एक रिपल इफेक्ट होता है। अब एक बार मार्केट में जाके करो बात करना शुरू, फिर और लोग आते चले जाते हैं। बट आई थिंक हम लोगों ने कंबाइन कुछ 70-80 लोगों से बात की होगी, ऑलमोस्ट सबसे तीसरे चौथे, मतलब 3-3 4-4 बार बात करी है। फिर बहुत टाइम बाद हमें एक हमारा पहला यस मिला था। वेरी हार्ड जर्नी। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੰਡਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ? नहीं, हमारे मल्टीपल हैं। हमारा एक लीड इन्वेस्टर है, यूएस फंड है, और छोटे काफ़ी अपने जो ये होते हैं छोटे-छोटे फंड्स जो होते हैं, एंजल फंड्स जो होते हैं वो हैं, और कुछ इंडिविजुअल एंजल्स भी हैं बैंगलोर, मुंबई के। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कितना होगा परसेंटेज? मेरे पास अभी अगर हम ईसॉप्स हटा दें तो नियरली 30% मेरे पास है। नहीं, 35 मेरे को-फाउंडर के पास है और 10% ईसॉप है बाकी। ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨੈਟਵਰਥ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 12 to 15 ਕਰੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ये तो सारे पेपर कागज़ों की बातें होती हैं, काम करनी चाहिए अपनी। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਚ, ਰੋਬੋਟਸ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ? हाँ जी, 2-3 कंपनीज़ हैं जो अभी, एक कंपनी रिसेंटली है, मुझे नहीं पता नाम लेना चाहिए कि नहीं, बट वो उन्होंने अभी 10 मिलियन का राउंड किया है कंप्लीट। और बाकी 2-3 और भी कंपनीज़ हैं। एक कंपनी और है, उन्होंने वाईसी किया था 2-3 साल पहले। मेजरली 2-3 ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, और एटलीस्ट जिनका बारे में मुझे पता है, और भी हो सकती हैं। यूएस में है काफ़ी कंपनीज़, यूरोप में है काफ़ी कंपनीज़ जो इसमें अच्छा काम कर रही हैं। इन्हें भी 2-3 है। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ अर्ਲੀ ਮੂਵਰ ਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਇਨ ਅ ਫਿਊ ਈਅਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਊਗਾ अर्ਲੀ ਮੂਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। मतलब मैं तो इस चीज़ में कॉन्फिडेंट हूँ कि हम नॉट जस्ट अबाउट अर्ली मूवर, हम जिस तरह से काम कर रहे हैं और जैसी हमारी टीम है, हम बहुत जल्दी इसको उस मार्केट में रीच कर पाएंगे जो मार्केट कोई टच भी नहीं कर रहा है अभी तक। ਓਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ? यही सारी इंडस्ट्री, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में भी हम अपने आसपास जब देखते हैं तो हमको रियलाइज़ नहीं होता है कि कितनी चीज़ें ये सारी कहाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं, ये इंडस्ट्री लगती कैसी हैं। मेरे को लगता है कि हमको एक फ़ायदा जो होता है वो ये होता है कि मैंने इतनी इंडस्ट्रीज़ में काम किया है, मुझे ग्राउंड रियलिटीज़ पता है। बहुत लोग होते हैं स्टार्टअप में जब कुछ कर रहे होते हैं, उन्होंने एक्चुअली में
कस्टमर फेस नहीं देखा होता है, उन्हें पता नहीं होता कि वहाँ पे चल क्या रहा है, उनकी मेजर प्रॉब्लम क्या है। तो हम बहुत फैंसी फीचर्स बना देते हैं, उनको वो चाहिए ही नहीं, उनको तो समझ भी नहीं आता है। मैं अपने कस्टमर जाकर कभी ये थोड़ी ना बोल सकती हूँ कि मैं एआई में कुछ बना रही हूँ, उसका मतलब क्या है। उनको जाके मैं बोलती हूँ कि ये आप लगाओगे तो आपको इतना फायदा हो जाएगा, इतनी सी बात होती है। तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा ओवरलुक्ड है, बहुत टाइम से लोगों ने इस पे काम नहीं किया है, पर्टिकुलरली स्टार्टअप में। आई थिंक बहुत बड़ा बूम आएगा और हम अभी स्पेस में है तो हम इसको शायद लेवरेज करेंगे, मतलब मोस्टली। ਤੁਸੀਂ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਮਤਲਬ ਹੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ये तो आप हमें इन्वेस्टर वाले सवाल पूछे। एक्चुअली मेजरली हमारा मैक्सिमम पैसा तो उसमें जाएगा, टू गेट द राइट पीपल, हायरिंग में जाएगा। हमें बहुत स्मार्ट लोग चाहिए। तो अगर कोई देख रहा है इसको, जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर आपको लगता है आप एआई में हो, कंप्यूटर विजन में हो, आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, आप हमसे कनेक्ट करो। पहली चीज़ तो ये है। तो मेजरली सारा पैसा जो जाएगा इसी में ही जाएगा। 30-40% गेटिंग द राइट टीम, राइट टेक्निकल स्किल सेट के लोग। हम बहुत ज़्यादा बड़ी टीम नहीं करेंगे, हम छोटी रखेंगे, बट इफेक्टिव लोग होने चाहिए। बाकी हमारा थोड़ा सा हार्डवेयर भी हमें चाहिए होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को हमारा हार्डवेयर के साथ टेस्ट करना पड़ता है। तो जैसे हमारी वर्कशॉप है अभी 25 सेक्टर में, वहाँ पे रोबोट्स लगे हैं, बहुत सारी मशीनें हैं, तो थोड़ा सा हमारा उसमें जाता है। बाकी सेल करने के लिए कस्टमर के पास रीच करना है हमको, उसमें पैसा लगता है। तो मेजरली इन चीज़ों में जाएगा सारा, 3-4 ब्रॉडली यहाँ पे। ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾ ਫੰਡਿੰਗ ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਗ੍ਰੇ ਬਰੋਡ ਦੀ। ਲਾਈਕ ਕੈਨ ਅ ਪਰਸਨ ਡੂ ਦਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਰੇਸ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ? बिल्कुल भी नहीं, कंपनी आप नहीं, फंडिंग इन पर्सन को नहीं मिलती है। फंडिंग मुझे नहीं मिली है, ना मेरे को फाउंडर को मिली है, फंडिंग कंपनी को मिली है। और अब कंपनी एक अपनी एंटिटी है, मैं तो सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ। मेरे पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी चलानी है, बट अल्टीमेटली मैं एक एम्प्लॉय हूँ कंपनी की, जो सैलरी लेता है। तो फंडिंग तो कंपनी को मिली है, मेरा तो राइट है नहीं, अभी तक तो नहीं है। जब हम मेरे शेयर्स हैं, अगर मैं कभी बेच पाई तो उसका राइट मेरे पास होगा, अभी तो नहीं है। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੌਕ ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਪਨੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ? लॉक इन होता है, हमारे शेयर्स लॉक हो जाते हैं इनिशियली कुछ साल के लिए, कि हम उन्हें टच भी नहीं कर सकते। और इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है, कुछ 4 साल 5 साल 6 साल का लॉक इन तो होता ही होता है, हमेशा ही होता है। वेस्टिंग होती है शेयर्स की, ईयरली बेसिस पे वेस्टिंग होती है। तो अभी तो हमारे पास है ही नहीं हमारे शेयर्स। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦੋ ਵੀ। बट वो भी आप कैसे बेचोगे ना, अगर आप फंडामेंटली सोचो, अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मैं क्यों फाउंडर के शेयर खरीद लूंगा? वो तो फाउंडर चला जाएगा तो कंपनी तो बैठ जाएगी, तो कोई खरीदता भी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब लॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आज फंडिंग रेज करके बोलूँ किसी थर्ड पर्सन को मेरे शेयर्स दे दो, वो पर्सन बोलेगा अगर तुम ही नहीं हो तो कंपनी नहीं चलने वाली है, तो मैं क्यों करूँगा तुम्हारे शेयर्स। लेटर ऑन होता है, जब आप सीरीज बी करते हैं, सी करते हैं, उस टाइम पे होता है कि आप अपने सारे शेयर्स ना बेच दें, तो उसके लॉक-इन्स लगते हैं। आप जब भी साइन करोगे कॉन्ट्रैक्ट, 70-70 पेज का एक कॉन्ट्रैक्ट आता है, उसमें फिर ये आती हैं सारी कंडीशंस आती हैं। ਥੋੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀ that you are working in industry 4.0। जी, ਇੰਡਸਟਰੀ 4.0 ਕੀ ਹੈ? तो दिस इज बेसिकली रेवोल्यूशंस। इंडिया इंडस्ट्रीज में हमारे अब तक 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हो चुके हैं। अभी हम चौथे पे, इनफैक्ट हम एंटरिंग इंडस्ट्री 5.0, हम 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी एंटर कर रहे हैं। तो पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जब स्टीम आई थी, उस टाइम पे एकदम से सब लोग कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह से मास प्रोडक्शन में मूव करे, लूम्स, सबसे ज्यादा लूम प्रोडक्शन होता था। फिर सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था इलेक्ट्रिसिटी का, एकदम से जो सारी मशीनें स्टीम पे चलती थी, 10-10 15-15 मशीनें एक ही स्टीम के पाइप पे ऑपरेट हो रही हैं, उनको आप इंडिविजुअली बंद नहीं कर सकते, इंडिविजुअली चला नहीं सकते, पूरी इंडस्ट्री इकट्ठी चलेगी, इकट्ठी बंद होगी। जैसे ही सेकेंड रेवोल्यूशन आया, इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन, मोटर्स वगैरह आ गई, तो उससे क्या हुआ, आप एक एक मशीन को इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, चला सकते हैं, ये कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाज अनदर सेकेंड रेवोल्यूशन। थर्ड रेवोल्यूशन में कंप्यूटर्स, ये अपना वर्ल्ड वाइड वेब, IT, ये सारा आया। एंड द फोर्थ रेवोल्यूशन वाज ऑल अबाउट डेटा, AI, डेटा, ये सब कुछ, कि हम कैसे डेटा को लेवरेज करके अपनी प्रोडक्टिविटीज बेटर कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी विद मास प्रोडक्शन, एक तो मास प्रोडक्शन है, उसमें फिर हम
कस्टमाइजेशन और फ्लेक्सिबल, पता नहीं मुझे ये वर्ड्स यूज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, बट अगर पता नहीं मतलब रेलेवेंस समझ में आनी चाहिए। और अब हम फिफ्थ की तरफ मूव कर रहे हैं, हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बट फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज अबाउट ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन। इट्स नॉट जस्ट कि एआई अपने आप में ऑपरेट कर रहा है, बट किस तरह से टेक्नोलॉजी इंसानों के साथ मिलके हम एक कोलैबोरेटिव या हाइब्रिड मोड में ऑपरेट करेंगे, क्योंकि यही होने वाला है। तो ये टुवर्ड्स फिफ्थ हम मूव करेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਆ ਕੇ 10-10 15-15 ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਊਟ ਆਫ एम्प्लॉयमेंट नहीं होंगे, उन्हें जॉब्स नहीं जाएंगे, फिर वो बंदे कितने शिफ्ट करनगे? हाँ, तो इंडिया में ना 2 तरह की लेबर है। अगर मैं सिर्फ लेबर की बात करूं, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर वो है कि आप सामान उठा के रख दो एक तरफ, या थोड़ा सा वैसा काम कर लो जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए। उसके लिए अभी इंडिया में रोबोट्स चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कॉस्ट नहीं मैच कर पाओगे। अगर मैं एक कस्टमर हूँ, मुझे पता है कि मैं किसी को 10,000 रुपये दे के काम करा सकती हूँ, तो मैं उसके लिए 20 लाख का या 15 लाख का या 10 लाख का रोबोट नहीं लूँ। फिर आती है स्किल लेबर वाली रेंज। स्किल लेबर में वो लोग होते हैं जिनको बहुत स्पेसिफिक स्किल आनी चाहिए कुछ कर पाने के लिए। जैसे मैं वेल्डिंग का एग्जांपल लेती हूँ, वेल्डिंग इज अ स्किल, हर कोई नहीं कर सकता, हेल्पर्स भी उस क्वालिटी की वेल्डिंग नहीं प्रोवाइड कर पाते। और वेल्डिंग बहुत फंडामेंटल है। आप देखो ना, ब्रिजेस बनते हैं, पेनिट्रेशन वैसा होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस जो ह्यूमन उनको कर रहा है, उनकी हेल्थ के बहुत हजार्ड्स होते हैं। आईज खराब हो जाती हैं, अगर आप देखोगे सब मुंह पे मास्क लगा के करते हैं, क्योंकि आईज खराब होती हैं, बॉडी में चिपिंग होती है। तो ये जो स्किल लेबर है, इनमें क्या हो रहा है, एक्चुअली में हमारे को अवेलेबिलिटी कम हो गई है इंडस्ट्री में। क्योंकि अगर आप समझ लो कि अगर मैं 25,000 महीना कमा रही हूँ एज अ वेल्डर, और मुझे 25-30 हज़ार ही स्विगी या उबर में ड्राइवर बन के मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी? व्हाट डू आई प्रेफर? ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਹੋ, जहाँ सेफ है, जहाँ मुझे आराम से स्कूटर है मेरे पास और मैं मस्त डिलीवरी करके पैसे कर पा रही हूँ, तो मैं फिर वेल्डर नहीं बनूंगी, ना मैं अपने बच्चों को बनने दूंगी। इंडिया में आज की तारीख में 12 लाख वेल्डिंग प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है। इंडिया में इतनी शॉर्टेज है, यूएस में 4 लाख की शॉर्टेज है, इसीलिए हमने वेल्डिंग को अभी चूज किया है। तो हमें कभी भी, अभी आप समझे, इंडिया में रोबोट्स कभी भी उन को नहीं रिप्लेस करेंगे जो अनस्किल्ड लेबर है। वो तो कॉस्ट ही नहीं बन पाएगी। अगर मैं अभी मॉरल बात हटा भी दूँ तो कॉस्ट वाइज ही वो मैच नहीं करता। हम अभी सिर्फ उनको रिप्लेस करेंगे जहाँ या तो सेफ्टी हेल्थ हजार्ड्स हैं, या फिर जहाँ पे एक्चुअली में अवेलेबिलिटी ही नहीं है, इंडस्ट्री वो ही खरीदे। तो ये होने वाला है। जैसे कंप्यूटर्स भी जब आए थे, ये बहुत क्वेश्चन आया था कि अब जो लोग पेपर पे अकाउंटेंट्स हैं लिखते हैं, इनका क्या होगा? अल्टीमेटली क्या होगा? उन्होंने नई स्किल्स सीखी। तो यही होने वाला है। गिग इकोनॉमी है, नई नई चीजें आ रही हैं, लोग वो बेटर काम करेंगे ऐसे काम छोड़ के जो उनकी हेल्थ के लिए भी खराब है। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਐਮਾਜ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੇਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, EMPLOYEES ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹਟਾ ਕੇ ਰੋਬੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਨਸਕਿਲ ਲੇबर ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਈ ਆ? हाँ, जो बाहर वाली थी वो अनस्किल्ड ही थी, बट वहां पे उसकी भी शॉर्टेज है। इंडिया में वो तब होगा जब अनस्किल्ड की हमारे पास शॉर्टेज हो जाएगी। आप देखिए ना, आप कुछ तब खरीदते हैं जब उसकी वैल्यू आपको दिखती है। एज अ कस्टमर आप कुछ भी कब खरीदोगे कि भाई मुझे इसकी वैल्यू दिख रही है, मेरे को एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा इस चीज का। तो अगर मैं इंडस्ट्री में मैं इंडस्ट्री ओनर हूँ, मैं कभी भी एक रोबोट नहीं खरीदूंगी जब तक मेरे पास एम्प्लॉयज हैं सस्ते में। अगर मेरे को कॉस्ट बेनिफिट यहाँ पे ज्यादा है, मैं सिर्फ तब रोबोट लूंगी जब मेरे पास एम्प्लॉयज ही अवेलेबल नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट ही नहीं आ पा रहा है मेरे को। तो इंडिया में भी ये तब तक नहीं होगा जब तक कॉस्ट बेनिफिट नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे इसलिए हो पा रहा है यूएस में क्योंकि वहाँ लेबर ही नहीं है, तो कैसे करोगे, इसलिए वहाँ हो पा रहा है। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਰੋਬੋਟਸ ਨੇ एज ऑफ नाउ। ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਰੋਬੋਟਸ ਬਿਨਾਂ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? कर सकते हैं, मतलब हम अब टेस्टिंग शुरू कर चुके हैं। काफी सारी टेस्टिंग एडवांस लेवल पे आ चुकी है जहाँ पे ये देख देख के, बट बेसिक व्हेन आई एम सेइंग ह्यूमन इंटरफेरेंस व्हिच मींस हमें स्किल्ड वेल्डर नहीं चाहिए। एक अनस्किल्ड पर्सन वहाँ पे खड़े होके 2-3 चीजें चूज करेगा और काम हो जाएगा। तो इनफैक्ट हम अनस्किल्ड लेबर को थोड़ा सा स्किल अप कर रहे हैं कि तुम मशीन से बात कर पाओ और मशीन काम वो कर देगी जो तुम नहीं कर सकते थे। तो एक्चुअली दिस इज मोर टुवर्ड्स इंडस्ट्री 5। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ तक जा सकोगे? इतनी डिफिकल्ट सवाल आप मेरे को कैमरे पे पूछोगे कि अगेन हमारा टेस्टिंग तो बहुत हाई एंड तक हो चुकी है, हम पायलट से आ रहे हैं। आई थिंक पायलट पे डिपेंड करेगा
जो हमारे 3 महीने का पायलट का टारगेट है, 3-4 मंथ्स के एंड पे हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि इसमें हमें कुछ और ऐड करना है या हम इसको रोल आउट कर सकते हैं। तो अ लॉट ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन पायलट। उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि बहुत जल्दी कर लें। ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਫਰਮ ਲਾਈਫ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ नहीं, आई वांट फ्रॉम लाइफ या कंपनी का विजन। ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਲਾਈਨਡ ਹੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਅਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ हमारा विजन तो ये है कि हमको, देखिए, हमें लगता है कि हम ना अबंडेंस की तरफ मूव करेंगे एज ह्यूमैनिटी। हम सब लोग, आप पिछले सालों से देखो, हम अबंडेंस की तरफ मूव कर रहे हैं। हम और अबंडेंस की तरफ मूव करेंगे एंड टेक्नोलॉजी उसको इनेबल करती है, टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। व्हेन आई मीन अबंडेंस, इसका मतलब ये है कि आज से 20 साल पहले अगर मिडिल क्लास के पास 10 चीजें होती थी, तो आज मिडिल क्लास के पास 50 चीजें होती हैं। आप अपने आसपास देखो, एक मिडिल क्लास फैमिली पहले अगर एक कार भी नहीं ले पाती थी, आज एक एक मिडिल क्लास फैमिली के पास 3-3 गाड़ियां होती हैं। तो हम टेक्नोलॉजी की वजह से अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं। हमें पता है कि ये टेक ब्रॉडली हर इंसान को इम्पैक्ट करने वाली है। तो एज फंडामेंटल विजन तो हमारा ये है कि हम बिगेस्ट टेक कंपनी बने। आई एम नॉट सेइंग इंडिया, ਇਨ ਵਰਲਡ इन द वर्ल्ड, ग्लोबली, जो हम इसको इनेबल कर पाए, ह्यूमन अबंडेंस को। ये तो हमारा बहुत बड़ा ब्रॉडर विजन है। इसीलिए हम लोग रोबोटिक्स की तरफ, इसीलिए हम लोग इंटेलिजेंस की तरफ, कंप्यूटर विजन की तरफ काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम उन चीज़ों को जो ह्यूमन को करने नहीं चाहिए वो हम मशीन से करवाएंगे, बट जो चीज़ें ह्यूमंस को करनी चाहिए वो ह्यूमंस ही करेंगे। दैट्स अ मिक्स ऑफ थिंग्स दैट वी डू। ये तो ब्रॉड विजन है हमारा। लेट अस सी वो कहाँ पे हमें लेके जाता है। और पर्सनली लाइफ में मुझे लगता है मुझे वो करना चाहिए जो मुझे करके मजा आता है, और मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करके मजा आता है। तो ये मैं तब तक करूंगी जब तक मजा आ रहा है। अगर मुझे नहीं आएगा तो आई लीव इट। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਰੋਬੋਟਸ ਬਣਵਾਉਣੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ खुद बनाने हैं रोबोट्स? ਹਾਂਜੀ हाँ, तो अभी जिस तरह के रोबोट्स हैं वो तो बहुत अच्छे चलते हैं, हम उनको तो दोबारा नहीं बनाएंगे, उसका सेंस नहीं बनता। बट मुझे लगता है कि अलग अलग तरीके के, जैसे 3 आर्म्ड, 4 आर्म्ड, या एक अलग डिजाइन के रोबोट्स बन सकते हैं जो कि काफी चीजें करने में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर हम कभी हार्डवेयर में गए तो हम वो ही देखेंगे कि कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ रोबोट जो कुछ चीजें सॉल्व करते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ विजन्स कि कैसे हम क्या क्या देख पाते हैं। वो 2 चीजें होंगी जो हमारा फोकस रहेगा। अभी हम बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं दे रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਜਾਂ ਫਲਾਈਂਗ ਕਾਰਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾ ਜੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ अभी तो नहीं सोचा है, बट अगर मैं आपको बोल रही हूँ बिगेस्ट टेक कंपनी, तो दिस ऑल बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस, बट नॉट राइट नाउ। अभी नहीं सोचा। ਕੋਈ 2025 ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ 25, 24, 25 का 25 ਜਨ टू दिसंबर नेक्स्ट ईयर का ना। हाँ। हाँ, तो 25-26 के हमारे टारगेट्स हैं। वी आर लुकिंग एट अ फ्यू CR, मतलब डबल डिजिट में हम लोग टारगेट कर रहे हैं, विच इज़ मेजरली हमारी कैलकुलेशंस पे कि अगर हमारा ये पायलट सक्सेसफुल होता है तो हम कितने कस्टमर्स कर पाएंगे। अगर 3 पायलट्स हमारे अभी पहले 3 महीने में है, उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर कितने टारगेट कर पाएंगे, तो 30-40 CR की रेंज हम टारगेट करके देख रहे हैं। ਵਿਦ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ 30-40 ਸੀਆਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ चाहते हैं 25-26 में, फाइनेंशियल ईयर 2026 में। ਤੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿੰਨੇ % ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ फिर ना वो अगेन ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है। हम सॉफ्टवेयर साइड पे आराम से 40-50% पे ऑपरेट कर पाते हैं, बट इनिशियली क्योंकि हार्डवेयर इज़ अ पार्ट ऑफ इट, तो इट कम्स डाउन 25% तक आ जाता है, 20-25% तक। तो यहीं पे 2 प्रॉब्लम्स होती हैं एक स्टार्टअप की। पहले तो प्रोडक्ट की, बनाना क्या है, फिर प्रोडक्ट मार्केट फिट, मार्केट में उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, और फिर तीसरी चीज़ होती है आपकी गो टू मार्केट, कि आप मार्केट में किस तरह से जा रहे हैं, क्या आपकी सेल्स चैनल्स हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजीज हैं। तो वो तीसरी चीज़ है। अभी हम मार्केट फिट प्रोडक्ट बना लिया है, मार्केट फिट पे फोकस कर रहे हैं। इसके बाद हमारा ये आएगा कि बेस्ट क्या चैनल लेना है जिससे हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाए। बट ब्रॉडली आप सिर्फ सॉफ्टवेयर में जब ऑपरेट करते हैं आप 50% तक के मार्जिन ले पाते हैं आराम से, एक्चुअली मोर 80% तक। और आप जब हार्डवेयर से कंबाइन करते हैं तो 30-40 इज द बेस्ट यू कैन डू, यूजुअली 20-25। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਾਰਡਵੇयर ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡਵੇयर ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓਗੇ हाँ, बिल्कुल जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो वो फ्लेक्सिबिलिटी, उतने नंबर ऑफ एक्सेस, एक बहुत टेक्निकल टर्म है कितने एक्सेस हैं किसी एक रोबोट में, तो अगर वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी और हमें लगेगा हम उससे बेटर कर सकते हैं, तो हम डेफिनेटली हार्डवेयर एक्चुअली मेरी स्ट्रेंथ भी है।
हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है, सब कुछ करना नहीं होता है। तो देयर वाज़ अ फ्रेंड जिसने मुझे बोला था कि जब तुम स्टार्टअप चलाते हो तुम ये मत देखो अभी छोटी प्रॉब्लम में कि तुम कर क्या सकते हो, कर नहीं क्या सकते हो में क्या होता है, जो टेक्निकल लोग होते हैं फंस जाते हैं, हाँ हम ये कर देंगे। पहले सवाल पूछो कि ये क्यों करना है, ये करना भी है कि नहीं करना है, उसके बाद कि हाँ ये करना है इसलिए करना है और हाँ हम ये कर सकते हैं। कर क्या सकते हो बहुत बाद में आता है, क्यों करना है सबसे पहले आता है। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਟੈਕ 'ਚ ਹੈਗੀ ਰੋਬੋਟਿਕਸ 'ਚ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਬੂਟਸਟ੍ਰੈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਫੰਡਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। नहीं कर सकते हैं, बेसिक सॉफ्टवेयर साइड ऑफ थिंग्स तो बिल्कुल आप बना सकते हो। हार्डवेयर में थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है क्योंकि आपको अगर लैब सेटअप करनी है, आपको रोबोट्स लाने हैं तो कुछ बेसिक फंडिंग मिलेगी, बट इसके लिए आपको नेसेसरीली वीसी फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है, इससे आपको फंडिंग मिल जाती है। इट इज़ इनफ टू गेट यू स्टार्टेड, बट लॉन्ग रन के लिए जो इस तरह के स्टार्टअप्स होते हैं डीप टेक के, उसमें बेटर होता है आप थोड़ी फंडिंग ले लो जिससे आप फ्री माइंड से ऑपरेट कर पाओ, आप उस लेवल के सोच पाओ, उस लेवल के आप रिस्क ले पाओ और आप ऑपरेट कर पाओ। नहीं तो आप हर दूसरे तीसरे महीने सोचोगे कि अब क्या करना है। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾम्स ਕਰਦੇ ਸੀ ਲਰਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ, मतलब बंद करने का मतलब ये है कि हम उसको एक्टिवली परस्यू नहीं करते हैं, हम मार्केट में नहीं जाते हैं। अगर कोई डिमांड आती है रन करने के लिए तो हम पे थोड़ी सी बैंडविड्थ होती है तो हम रन कर देते हैं। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੋਬੋਟਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ नहीं ਹੈਗੀਆਂ फॉर ह्यूमंस। तो वेल्डिंग में भी दो तरह की होती हैं, एक मिग वेल्डिंग जिस पे हम अभी फोकस कर रहे हैं, फिर हम जाएंगे लेजर वेल्डिंग पे जो छोटी बहुत प्रिसाइज होती है। उसके बाद पाउडर कोटिंग होती है, अगेन पाउडर वगैरह आंखों पे और मुंह पे जाता है तो पाउडर कोटिंग इज समथिंग विच वी विल फोकस ऑन। फिर ग्लूइंग वगैरह आ जाता है, प्रिसाइज ग्लूइंग जिसमें ह्यूमंस कर सकते हैं बट वो इतना प्रिसिशन का काम है कि उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो जिस भी उसमें रोबोटिक आर्म अपना डिसीजन लेके मूव कर सकती है और चीजें फास्टन अप कर सकती है, वहां पे हम लोग मूव करेंगे। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ ਕਸਟਮਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਟੈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਦੇ कस्टमर होना चाहिए। हम मेजरली टारगेट करेंगे ऑटोमोटिव्स में बाद में जाके, तो महिंद्रा है, ये बड़ी कंपनीज हैं जिनको हम टारगेट करेंगे। इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ रोबोट्स दीज गाइज यूज, तो ऑटोमोटिव इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट टारगेट, सबसे बड़ा वो है। एक वी वुड लाइक कि हम लोग डिफेंस में भी जा पाए, शिप्स में बहुत ज़्यादा काम होता है। और वहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था, कई बार वहाँ पे ज़मीन वाले रोबोट्स जो ये ज़मीन पे लगते हैं वो नहीं चल पाते हैं, तो वहाँ पे ड्रोन वाले रोबोट्स जो वेल्डिंग कर पाए अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट दैट इज समथिंग हम उसको देखेंगे कि अगर ड्रोन वाले रोबोट्स हैं जो वेल्डिंग कर पाते हैं वो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल डिफरेंस ला सकते हैं, तो देख सकते ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚ ਓਕੇ ਪੇਂਟ ਸ਼ਾਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ हैं। सब कुछ ही होता है। ਕਨਵੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਗੇਸਟ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਸਟਮਰਸ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੋਬੋਟਸ ਵਗੈरह ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो अभी जो रोबोट्स हैं वो स्मार्ट नहीं है। इट्स लाइक आप ऐसे समझो कि एक इंसान है, इंसान जैसा कुछ है जिसके पास दिमाग नहीं है और आंखें नहीं है। तो अगर दिमाग और आंखें नहीं है तो आपने उसको एक बार सिखा दिया कि ऐसे करना है, कुछ भी करना है, लेट्स से कुछ उठाना है उसको, तो आप क्योंकि दिमाग भी नहीं है और आंखें भी नहीं है तो वो बंद आंखों से बिना दिमाग लगाए बार बार एक ही मोशन तो रिपीट कर पाता है। बट अगर आपने जो चीज़ उसको उठानी है आपने उसको उठा के लेफ्ट से राइट में रख दी, अब उस ना तो उसको दिख रहा है कि वो हिल अपनी जगह से हिल रही है, ना उसके पास दिमाग है उसको प्रोसेस करने का, तो वो तो वही करता रहेगा चाहे वो सामान वहाँ पे हो कि नहीं हो। अब आप उसको ह्यूमन बनाने की कोशिश करो, थोड़ा सा ह्यूमन, कि उसको आंखें दे दी, विजन जिसे हम बोल रहे हैं, और वो देख पा रहा है कि यहाँ की जगह ये तो यहाँ चला गया तो मुझे यहाँ से नहीं यहाँ से उठाना। उसके बाद आपने उसको ब्रेन दिया ये प्रोसेस करने के लिए कि यहाँ से जब वो भाग गया तो वो किस पोजीशन में रखा है और अब मुझे अपना पाथ जो यहाँ की जगह यहाँ मूव करना है वो कैसे करना है। तो जब आप उसको ये दो चीज़ें दे दोगे तो वो फिर अब आसपास देख के सारी चीज़ें कर पाएगा। तो अभी के रोबोट्स आर लाइक एक पर्सन जिसके पास आंख और दिमाग नहीं है और अब हम दे रहे हैं आंख और दिमाग। ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਲ ਸਮਿਥ ਦੀ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਰੋਬੋਟਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹ 'ਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਵਗੈरह ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੈਨ ਦੇ ਡੂ ਸੱਚ ਥਿੰਗਸ ਰੋਬੋਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਦੇਤਾ सोचने की शक्ति देती है। यस एंड नो, बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप इतनी ज़्यादा दे दोगे विदाउट बाउंड्रीज। इंसान जैसे है ना, अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो इंसान क्या करेगा, खराब कर सकता है ना चीज़ें, मर्डर भी कर सकता है, मार भी सकता है, तो वो भी ऐसे हैं कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी से 25 सवाल पूछो तो वो कई बार जवाब देता है कि ये एथिकल नहीं है,
तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। इसका मतलब ये नहीं उसको जवाब नहीं पता है, उसको ये पता है कि एथिकल बाउंड्रीज ही हैं। तो आई थिंक व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट एआई में कि आप एथिकल बाउंड्रीज डिफाइन करो। रिस्क फैक्टर तो है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਆਪ ਲੈਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। देखिए अभी तक ह्यूमंस के पास दो कॉन्शियस हैं, एक तो इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, और एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे ह्यूमंस में ऑपरेट करती है वो अभी इतना पता नहीं है, तो हम इसमें भी नहीं डाल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज प्योरली लॉजिकल इंटेलिजेंस और बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डेटा। आप उसको जो ट्रेनिंग डेटा से ट्रेन करोगे वो वैसे ऑपरेट करेगा। तो इसलिए एक इमोशंस वाला गेम तो नहीं है यहाँ पे कि वो उसको लग रहा है मेरे साथ धोखा हो गया है या मेरे साथ ये हो गया है, बट वो जो पढ़ता है देखता है उससे वो एक बिहेवियर रेप्लिकेट कर सकता है, किसी और का बिहेवियर देख के रेप्लिकेट कर सकता है। उसके लिए मेजर यही है कि राइट बाउंड्रीज पूरी लगानी पड़ेंगी, एथिकल बाउंड्रीज और अदर काइंड ऑफ बाउंड्रीज ऑल्सो, कि वो उसके आगे ऑपरेट ना करे। तो दिस बिकम्स एक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो आप ट्रेन कर रहे हो, आप क्या ट्रेन कर रहे हो, किस तरह का डेटा उसको दे रहे हो, क्या उसको बाउंड्रीज बताई हैं। वेरी सिमिलर लाइक आप बच्चे को कैसे बड़ा करते हो, इट कैन गो इधर वे। ਰੋਬੋਟਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਏਆਈ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। वेरी यहाँ पे ना मेरा अगर को फाउंडर होता तो आपको बहुत अच्छा जवाब दे पाता मुझे लगता है। मेरी इसकी बहुत क्रूड अंडरस्टैंडिंग है, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट ब्रॉडली न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह होते हैं, जैसे हमारे न्यूरॉन्स होते हैं आपस में ऐसे कनेक्टेड, इसी तरह से न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। हम ट्रेनिंग करते हैं, रीइंफसाइज करते हैं, पुराना वो डेटा को लेके आता है। और एक तो चीज़ होती है कि पुराना डेटा उसको एक चीज़ सिखा दी और वो वही करा जा रहा है। एक चीज़ होती है कि वो मल्टीपल डेटा को देख पा रहा है और उसके हिसाब से हम उसको समझाते हैं कि कैसे इसको समझना है। ह्यूमन की भी वायरिंग ऐसे ही है। आप बच्चे को कुछ एक चीज़ सिखाते हो, फिर दूसरी चीज़ सिखाते हो, उससे वो समझता है कि अगर ये दो चीज़ ऐसी हैं तो तीसरी ऐसी होनी चाहिए। तो इस तरह का, एंड देन मोर एंड मोर यू ट्रेन इट, द बेटर रेफरेंस पॉइंट्स इट गेट्स। उसको और रेफरेंस पॉइंट्स मिलते हैं, वो और सीखता जाता है। तो ब्रॉडली तो ऐसे है। इसका कॉन्सेप्ट क्यों आया, कैसे आया, तो कितने साल पुराने, कितनी पुरानी पुरानी मूवीज हैं जिसमें ह्यूमन माइंड है ना हमेशा आगे का सोच रहा होता है। जैसे पहले वो व्हील आया, अब गाड़ी बनाते हैं, एरोप्लेन बनाते हैं, सब बनाते हैं। इंटेलिजेंस हैज बीन वेरी इंट्रीगिंग पार्ट। इंटेलिजेंस से हमें लगता है कि यार कैसे आप क्या सोच पा रहे हो और मैं क्या सोच पा रही हूँ। तो फिर एक इंसानों को लगता है क्या हम ऐसा कुछ बना सकते हैं जो खुद सोच पाए। अब जैसे हमारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड हैं, ऐसे ही उनके न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं। इस तरह से फिर उनकी कोडिंग होती है कि किस तरह से वो किस पॉइंट पे किस डेटा को उठा के समझ के आगे बता पाएंगे। ब्रॉडली यही है। ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿਊਮਨਸ ਆਰ ਦਿਸ ਕੇਪੇਬਲ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੇਪੇਬਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੂਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਂਡ नहीं हैगा, ਵੀ ਉਹ ਬॉडी पार्ट्स बनाने विद दिस रोबोट्स एंड एवरीथिंग। अभी अगेन तो आपका ना एक्चुअली सवाल अच्छा है, और हम लोग हमेशा बैठते हैं जब मेरा को फाउंडर कितनी चीजें करने वाली जो एक ही कोर टेक्नोलॉजी से हो सकती है। फिर हम पे ये सवाल आता है कि हमको अभी स्टार्ट एक चीज से करना पड़ेगा। तो अभी ये सोचा नहीं है, बट ये ऐसा भी नहीं है कि हो नहीं सकता है। दोनों चीजें आप समझे, कर सकते हैं, बट अभी करने का एक चीज को पकड़ के वो ही करनी चाहिए। एज अ स्टार्टअप ये बहुत जरूरी है कि जब आप कुछ करते होते हो आपको बीच में बहुत डिस्ट्रैक्शंस आते हैं कि इससे तो ये भी हो जाएगा, इससे तो ये भी हो जाएगा। फिर बार बार अपने को खींच के वापस लाना पड़ता है कि नहीं ये हो तो जाएगा, बट अभी इसको छोड़ दो, पहले ये कंप्लीट करते हैं, फिर ये दोबारा दूसरे स्टेप में करेंगे। तो ये हमारा ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन और स्टैंडर्ड आंसर है। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਿਊਰੀਅਸ ਆ हाँ मैं आपको मतलब बता रही हूँ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਿਕਮਸ ਐਕਸੈਸਿਬਲ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਆਰਮਸ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। मुझे लगता है 7 to 8 years, मतलब 10 years आप मैक्सिमम मान लो। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीप हो चुकी है। चाइना इस टाइम पे गजब कर रहा है, बहुत बहुत एक्सेसिबल चीप रोबोटिक आर्म्स आ चुकी हैं, बट अभी वो उतनी चीप नहीं हुई है कि हाउस होल्ड में यूज़ की जाए। बट वेरी सून आपको दिखेगा कि हाउस होल्ड्स के लिए भी वो उस तरह के नैनीज फॉर किड्स, छोटे बच्चों के लिए नैनीज क्योंकि मिलती नहीं है,
अभी हमें जैसे मेड्स की प्रॉब्लम होने वाली है, तो ये बहुत जल्दी आपको विद इन 6-7 ईयर्स इनका आपको दिखना शुरू हो जाएगा मार्केट में। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਇਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਰੋਬੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਹੈਲਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਿਨ ਕਾਰਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਕਿੰਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਟਵਿੱਟਰ, SpaceX, ਨਿਊਰੋਲਿੰਕ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਲਟੀटास्किंग। तभी तो मैंने आपको बोला, आई थिंक एग्जीक्यूशन, मुझे तो उसका एक ही जवाब दिखता है, बहुत सोचो मत। आपको एक चीज आई, मोस्टली जो आपका हंच, इनिशियल हंच होता है, वो थोड़ा सा लर्निंग राइट होता है। तो जब कुछ आए उसको थोड़ा सा सोच के कर दो। सिंपल एग्जांपल देती हूँ जहाँ पे मैं भी लैक करती हूँ कि कोई ईमेल आई कुछ पूछने के लिए। अब मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैं पहले इसको सोचती हूँ, फिर मैं इसका जवाब लिखूंगी। वो जवाब लिखने में ही 1 दिन लग गया। आइडियली तो 2 मिनट लगने चाहिए ना। ईमेल आई, मैंने इमीडिएटली, मेरे पास फोन है, मैसेज टाइप किया, रिप्लाई किया, भेज दिया। तो हम लोग ऐसे ऑपरेट करते हैं यूजुअली, वो नहीं करते हैं ऐसे। वो लोग इमीडिएट रिप्लाईज करते हैं, चाहे वो सिंगल वो हो। तो वो एक एग्जाम्पल है एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी समझने का, कि जब आपके पास कुछ डिसीजन आ रहा है, आप लो, आगे बढ़ो, इतना सोचो मत, इतना टाइम मत वेस्ट करो। ਮਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਕ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਨਾ ਅਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मनी ऐसे मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है। इट्स नाइस टू हैव मनी, मनी होना चाहिए। बहुत चीजें इजी हो जाती है जिंदगी में पैसे से। मुझे पसंद है पैसा खर्चना। मेरे पास जब आता है मैं पूरा खर्च देती हूँ। मैं जब यूके में थी, मैं कितना घूमी, मैं सारा काफी पैसा खर्चा था। बट मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है, मतलब मैं अपने डिसीजंस पैसे के हिसाब से नहीं लूंगी। ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? नहीं नहीं, क्योंकि कितने स्टार्टअप तो फेल होते हैं। स्टार्टअप तो मोस्टली फेल होते हैं। आई वॉज सर्टेन, मेरे को पता था कि 99% में जितना पैसा लगाऊंगी 3 साल में ये डूब जाएगा। 1% चांस है कि नहीं डूबेगा और ये शायद आगे हम कुछ कर पाएंगे। मेरे लिए तो मोटिवेटिंग फैक्टर है कि मैं कुछ ऐसा बना पा रही हूँ जिसको मैं बोल पाऊँ ये मैंने बनाया है और ये इतने लोग यूज कर रहे हैं। दिस इज व्हाट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਮਤਲਬ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਊਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ? ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵਿਦ ਇਨ ਦਿਸ ਫੰਡ? आई थिंक प्रॉफिटेबल की बात नहीं है। प्रॉफिटेबल तो हम कभी भी हो सकते हैं। मैं थोड़ा बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे पता है कि प्रॉफिटेबल होना इतना हार्ड नहीं होता है। स्पीड और स्केल मैटर करता है। आप एक चीज 10 साल में बना रहे हो, या मतलब एक चीज नहीं बना तो आप चाहे जल्दी रहे हो। आप अगर 100 लोगों को बेचते हो, वो आप 10 साल में 100 लोगों तक पहुंच पा रहे हो, या आप 1 साल में 100 लोगों तक पहुंच पा रहे हो, वो मैटर करता है। तो प्रॉफिटेबल अगर हम हो भी जाते हैं, तब भी अगर हम स्केल रीच करना चाहेंगे, अगर हम डेमोग्राफी चेंज करेंगे, जोग्राफीज चेंज करेंगे, हमको यूएस जाना है या हमको मिडिल ईस्ट जाना है, तो हमको पैसा चाहिए होगा। तो हम इसलिए रेस करेंगे, क्योंकि मेरे लिए दोबारा से लाइफस्टाइल बिजनेस चॉइस नहीं है। वो मेरे पास पहले भी था कि आप इनफ पैसा कमा रहे हो बिजनेस करके, या जो मैं फ्रीलांस करती थी इनफ पैसा मिलता था। वो जो स्केल है, वो जो ग्रोथ है, आज 100 लोग कर रहे हैं यूज, आज 500 लोग यूज कर रहे हैं जो चीज हमने बनाई है, उससे मजा आता है, उससे किक मिलता है। तो स्केल के लिए फिर फंड रेज हम करेंगे। बाकी देखिए, कुछ नहीं कह सकते उस टाइम पे क्या डिसीजन होगा, उस टाइम पे हमें क्या लगेगा, वो तो तभी पता चलेगा। बट अभी तो यही थॉट। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ US ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਜਾਣਾ, हाँ जी, ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਟੈਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? अभी नहीं है, बट वो लोग भी इसी पे ही काम कर रहे हैं, हमसे आगे हैं, हमसे ज्यादा फंड भी हैं, तो शायद हमसे जल्दी कर देंगे। बट उसके बाद भी इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर 2-3 कंपनीज कर भी रही हैं, तो इतना बड़ा मार्केट है कि 3 कंपनीज, 4 कंपनीज, 10 कंपनीज से फर्क नहीं पड़ेगा। हमें लगता है कि हम एटलीस्ट विद इन इंडिया तो बहुत फास्ट कर देंगे। वी विल बीट द मार्केट हियर, द कंपटीशन हियर एटलीस्ट। ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ, ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ इंडिया करना है। इंडिया में तो थोड़ा 1-2 पायलट्स करके हम इंडिया मार्केट भी करेंगे, बट ग्लोबली भी करेंगे ना, क्यों नहीं? क्योंकि हमारा जो एक प्लग एंड प्ले प्रोडक्ट है, वो तो मिडिल ईस्ट में भी चाहिए, वो तो यूएस में भी चाहिए, वो तो जापान कोरिया में भी चाहिए। ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है फंडामेंटल है, हर जगह है। तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। वही बात कि धीरे धीरे करना है या स्केल करना है, तो हमें तो स्केल करना है, हमें तो बड़ा बिजनेस बनाना है। और एक ही चीज का नहीं है ना। अल्टीमेटली अगर आपको बड़ी, सबसे बड़ी टेक कंपनी बननी है, तो आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और आपको क्या करना है, क्या बनना है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ?
ऐसा कोई नहीं था जब शुरू किया था, तो बस वो विजन था कि कुछ बनाना है, अपना बनाना है। और अगर 10-15 लोग की टीम भी हो गई तो बहुत बड़ी बात है। यही था। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਨੀ ਆ। और ये 2 चीज़ों से आता है। जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको पता चलता है आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जब हार्डेस्ट टाइम आते हैं तो क्या आप सर्वाइव कर पाते हो? और एक कॉन्फिडेंस उसी से बिल्ड होता है कि इतना भी मतलब दिल्ली इतनी दूर नहीं, ਸਹੀ ਹੈ। ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, ये भी करती है कि आप अकेले हो एक जर्नी में, या आपके साथ कोई पर्सन भी है। तो जब से मी एंड माई को फाउंडर, जब हम दोनों ने साथ काम करना शुरू किया, तो जैसे आज मैं और आप बात कर रहे हैं ना, 10 चीजें कर पा रहे हैं, ऐसे वो और मैं भी बहुत बातें करते हैं। तो उससे हमारा विजन और बड़ा होता चला जाता है। तो इट इज सिमिलर एज लाइफ ऑल्सो, कि आप लाइफ में शादी इसलिए करते हो कि आप एक पार्टनर मेक्स लाइफ बिगर एंड ईजियर फॉर यू। स्टार्टअप में भी सेम यही है, आपका विजन बड़ा हो जाता है, सडनली आपका डर कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੇਮ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਜਦ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ 1 ਤੇ 11 ਜੀ। ਲਾਈਕ 1+1 11 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 2 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ? ਲਾਈਕ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗਲਤ ਸਟੈਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਵਨ ਬਾਈਜੂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫੰਡਸ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ 0 ਤੇ ਆ। तो हाँ, उनका एग्जाम्पल तो मैं नहीं लूंगी अभी, क्योंकि एक्चुअली में कंपनी के अंदर क्या होता है और हम कोई डिसीजन क्यों लेते हैं, वो तो ना उसी पर्सन को पता है जो वो डिसीजन ले रहा है। बाहर से बैठ के हम लोग, सब लोग के लिए जज करना आसान होता है कि इस वजह से हो गया होगा। बट इन जनरल जो आपका सवाल है कि अगर बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो क्या वो खराब करता है, इट इज सेम एज कि जब किसी को बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा फेम मिल जाता है, जैसे लेट्स टॉक बॉलीवुड या मीडिया में, एक पर्सन जिसने थोड़ा सा एफर्ट मारा और उसको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा फेम मिल गया तो उसको हैंडल नहीं कर पाता। उसको उसके इमोशंस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, उसको पता नहीं चलता कि क्या करना है और क्यों करना है। वही जो पर्सन होता है जो धीरे धीरे मेहनत करके वहां तक पहुंचता है, उसको जब मिलता है उसको लगता है यार ये मैं डिजर्व करता हूँ, और मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे आगे और ये करना है। इसलिए पैसे का मतलब नहीं है। पैसा चाहे आप 10 लाख रेज करो, चाहे 1 करोड़ करो, चाहे 100 करोड़ करो, चाहे 800 करोड़ करो, पैसा कितना है उससे इतना मैटर नहीं करता। आपका अपना विजन क्या है, वो बहुत बड़ी बात है। वो आपको खराब या ठीक करेगा, वरना तो 1 करोड़ में ही बंदा पागल हो सकता है, और 10 करोड़ में भी हो सकता है कि कितना मिल गया क्यों नहीं मिला। हमें तो पता है कि अगर हम इतना रेस कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। हमने, आप यकीन नहीं मानोगे, आज भी मैं अपने कभी कुछ वेंडर्स के साथ 5-5 हज़ार रुपए के लिए लड़ रही होती हूँ कि आप गलत क्यों मेरे से चार्ज कर रहे हो। वही कई बार डिसीजन ईजी होता है कि यार ठीक है ना, हम पे हैं, खर्च देते हैं। बट ये ना आदत बन जाती है। इसको एक वर्ड होता है स्लिपरी स्लोप, कि यार एक स्लिपरी स्लोप अगर है और आप गलती 1 बार करो 2 बार करो मैटर नहीं करती, सडनली आप स्लिप कर जाओगे और आप बहुत सारी गलतियां कर दोगे, तो वो 5,000 का 50 लाख हो जाएंगे, आपको पता नहीं चले। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए। मुझे नहीं लगता पैसे का मैटर है, बट हाँ, मिल गया और आपको पता ही नहीं है कि इमोशंस इतने हाइटेंड हो गए तो वो बिल्कुल खराब कर सकता है। अब टीम बहुत बड़ी कर लो, अननेसेसरी आपको पता नहीं है कि रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए सिंपल है, हर इंसान के इमोशंस होते हैं। गेट द राइट एडवाइजर्स, 4 लोगों से बात कर ले। आप हमेशा ठीक नहीं हो सकते। जो लोग उस जर्नी में पहले जा चुके हैं उनसे बात कर लो, उनसे एडवाइस ले लो, उसके हिसाब से डिसीजन करो। मुझे ऐसा लगता है। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਡਵਾਈਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੇਮ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਵਿਜ਼ਨ, ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਲੈਬ ਆ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਬੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? लैब तो हमारी अभी तो बहुत बड़ी नहीं है। एक हमारा फुल साइज रोबोट है, 2-3 स्मॉल छोटी मशीन्स हैं। हमने छोटे अपने रोबोट्स बनाए हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए। हमारी ऑफिस स्पेस अभी आप लगा लो 100 स्क्वायर फीट के अराउंड है, सॉरी 1000 स्क्वायर फीट के अराउंड अब ऑफिस स्पेस पूरी हो चुकी है। 20 लोग मैंने आपको बताए थे, 20 लोग हो चुके हैं। तो अब लैब तो अभी छोटी, आई थिंक अभी वो लैब तो उतनी इनफ है। अब तो हम कस्टमर साइट पे जाके वहाँ पे पायलट्स वगैरह करेंगे, तो वहाँ पे और जितना चीजें चाहिए होंगी। बट हाँ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਲਾਈਟ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ?
ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੋਬੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਟੂ ਹਿਟ दैट टारगेट ऑफ 30-40 CR? हमको ना प्राइसिंग अभी डिस्कवरी करनी है, एग्जैक्ट डिस्कवरी मार्केट में जाके होती है। जो हमने कैलकुलेशंस वगैरह करी हैं वो हमारा ब्रॉडली आप ये मान लो 40-50 इंस्टॉलेशन जो होती हैं, जैसे हमारा ना थोड़ा रेवेन्यू भी चेंज होने वाला है। वो मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में सब कुछ नहीं बता सकती। हमारा एक रेवेन्यू मॉडल चलने वाला है जून तक, और जून के बाद हमारा रेवेन्यू मॉडल चेंज होने वाला है। बट ब्रॉडली आप मान लो हमें 100-ish इंस्टॉलेशंस करने हैं, 100-150 इंस्टॉलेशंस टू हिट हमारे टारगेट रेंज। 30-40 CR ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੰਡਰਡ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਮਾਸ प्रोडक्शन नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। तो रोबोट तो हम प्रोड्यूस वैसे भी नहीं कर रहे हैं ना, वो तो लेके हमें अपना सॉफ्टवेयर लगा के आगे लगाने हैं। ਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, US ਜਾਣਾ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਮ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, AI 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? बहुत हार्ड है, और चंडीगढ़ में बहुत फ़ायदे हैं काम करने के। आप फोकस करके काम कर पाते हो, आप डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते हो। तो ये हमारा ना एक फंडामेंटल हमेशा क्वेश्चन रहा है कि टियर 2 में स्टार्टअप क्यों नहीं बन पाते। तो ये तो ना अगर आप जितने लोगों को दिखाओ दिखा दो भाई, मैं चाहती हूँ 2-3 चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। एक तो हमारे को हायरिंग का तो इशू होता ही है, हमको नया टैलेंट मिल जाता है, एक्सपीरियंस लोग यहाँ मिलने में इशू हो रहा है। बट ऑल्सो हमने अभी ही स्टार्ट किया है, तो आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है 1-2 महीने के एफर्ट में हमें मिल जाए लोकली। मैक्सिमम लोग बैंगलोर प्रेफर करते हैं, गुड़गांव प्रेफर करते हैं। तो जहाँ ये फ़ायदा है चंडीगढ़ में काम करने का कि हम बहुत फोकस होकर काम कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं है कि बैंगलोर में बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। सिमिलरली हमें हायरिंग में थोड़ा इशू हो रहा है। एक जो दूसरी चीज़ है, हमारे ट्रैवल बहुत हार्ड है। आप देखो, जब मुझे बैंगलोर, मुंबई, पुणे जाना है, आई वॉज लुकिंग, अभी मुझे बैंगलोर जाना था, 40,000 की रिटर्न फ्लाइट। इससे सस्ते में ना मैं अब्रॉड होके आ सकती हूँ। विद इन इंडिया अगर आप चंडीगढ़ टियर 2 सिटी से या बैंगलोर की या कहीं की इतनी महंगी फ्लाइट्स रखोगे, हाउ इज योर स्टार्टअप गोइंग टू थ्राइव? कैसे ऑपरेट करेंगे हम लोग? अगर मुझे 4 लोग की टीम लेके जानी है तो मैं 1.5 लाख 2 लाख रुपए कैसे लगाऊं सिर्फ फ्लाइट में? तो मैंने सोचा है कि मैं ये ईमेल लिखने वाली। ਆਈ ਗੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੈਂਗਲੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਾਫੀ ज़्यादा पे दे के फिर थोड़े बहुत बंदे आएंगे। हाँ, ये बात सच है, थोड़ा सा ज़्यादा देके। और यहाँ पे वैसे लिविंग एक्सपेंसेस कम है कंपेयर टू बैंगलोर, तो उनका नेट अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ पे आ पाएंगे। एक बार की बात होती है, हर जगह पे एक स्टार्टअप होता है। अगर सपोज हम ला पाए इनफ टैलेंट, फिर बाकी स्टार्टअप जो यहाँ पे है उनके लिए ईजी हो जाएगा और धीरे धीरे ये हब बन जाएगा। तो एक बार की बात होती है, बैंगलोर का फेस भी फ्लिपकार्ट ने चेंज किया था सारा, और वो एक स्टार्टअप हब बना। एंड हम वी होप कि हम चंडीगढ़ के लिए ये कर पाएँ कि हम इनफ टैलेंट ला पाएँ कि सारे स्टार्टअप्स फिर यहाँ पे उससे बेनिफिट कर पाए। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੱਬ ਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਂਗਲੌਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਨ ਹਾਊਸ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵੀ एम्प्लॉयज़ ने? हाँ, वो तो करना पड़ता है ना अपनी चीज़ के लिए। हम जो बना रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं वो तो बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। और हमने अभी तक बहुत सीनियर फोक्स हायर नहीं करे थे। अब जनवरी से हम 1-2 और सीनियर फोक्स लाएंगे। अभी तक सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब स्टूडेंट्स नहीं, फ्रेश ग्रेजुएट्स को हमने हायर किया हुआ है। अच्छे हैं, दे वेरी स्मार्ट किड्स बाय द वे। आजकल AIML में इतना फोकस है, बहुत स्मार्ट किड्स है, पर सीनियर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज है, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ਸੇਲਸ ਟੀਮ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ 100-150 ਯੂਨਿਟਸ ਲਗਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹਦਾ? हाँ, पर अभी नहीं, वो 4-5 महीने बाद, पायलट के बाद, क्योंकि वही बात है ना, पैसा आ गया इसका मतलब थोड़ी ना उड़ा दोगे। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੂਰਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਤੇ ਵੇਚਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਰਮਸ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕੰਪਨੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ सेल्स देखोगे भी, इन्हों किवें करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना ये होती है एक स्टार्टअप के लिए, ऐसा लगता है हमको कि अगर हम लोग हायर कर लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट भी बन जाएगा, हमारा सेल भी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आप जो फाउंडर्स है ना उनको घुसना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो ना, घुस के उनके साथ बैठ के बनाओ।
ऐसे ही जब आप सेल करते हो, इनिशियल जो आपके कस्टमर्स हैं उनसे आपकी लाइफ टाइम वो बनेगी, एक रेपो बनेगी। फाउंडर को खुद ही करना चाहिए। आप साथ में एक बंदा ले लो, बट आप छोड़ नहीं सकते टीम के ऊपर। मेरे को नहीं लगता कि जो पहले 100 यूनिट भी हमारे जाने हैं या 200 यूनिट जाने हैं, उनके लिए हम 200 ही तो है। 200 यूनिट का मतलब अगर मैं एक यूनिट में 5 भी लगाती हूँ तो मुझे 40-50 कस्टमर ही तो टारगेट करने हैं। तो 50 कस्टमर तो मैं टारगेट कर सकती हूँ 1-2 लोगों को साथ में लेके। वहां से ब्रांड बनती है, वहां से आगे खुलती हैं चीजें। तो मुझे नहीं लगता इनिशियली किसी भी स्टार्टअप को बहुत बड़ी सेल्स टीम कर लेनी चाहिए। फाउंडर्स को ही बेचना चाहिए। फाउंडर्स जब बेचते हैं, ये इन्वेस्टर्स से जैसे जब आप पैसा उठाते हो, मैं जाके बात करूं या मैं किसी को हायर कर लूं और वो जाके बात करे, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो फाउंडर्स इन्वेस्टर से तो खुद ही बात करते हैं, कस्टमर से नहीं करते हैं। दैट्स नॉट गुड। कस्टमर से भी खुद जाके करना चाहिए। खुद ही बेचो, जब तक बेच सकते हो खुद बेचो, फिर उनको ले आओ। ऐसे जब तक टीम के साथ लग के कोड लिख सकते हो, खुद बैठ के लिखो। मतलब मत लिखो, बट टीम के साथ बैठो, सुबह शाम बैठो, फिर आप आगे कर सकते हो। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਗੈਸ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਰੋਬੋਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਡ ਸੇਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, मोस्टली ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂट्स ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। आई थिंक इनिशियली थोड़ा थोड़ा 2 चीजों में होगा। एक तो थोड़ा सा रिक्वायरमेंट की क्या प्रोडक्ट है जिस पे हम वेल्ड कर रहे हैं। दूसरी चीज किस रोबोट के साथ, क्योंकि मार्केट में रोबोट के बहुत सारे वेंडर्स हैं। तो हम अभी वो बना रहे हैं, हर एक वेंडर के साथ उसके लिए एक लिंकिंग्स बनती हैं, सारी वो एपीआईज वगैरह बनती है। तो ऐसे ही अगर 10 के साथ है तो 10 के साथ हमें एक लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। अल्टीमेटली जब 10-15 के साथ लाइब्रेरी बन गई, फिर क्लिक की बात है कि अच्छा मेरा ये वाला रोबोट है, ये वाला मेरा आइटम है, कर दो। तो ब्रॉड रेंज कम है, बट अभी हमारा वर्क इन प्रोग्रेस ही रहने वाला है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲਾਈਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਵੈਂट्स ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇਸ? 2-3 तरह से कर रहे हैं। हम इंडीड पे डालते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए। कैंपस प्लेसमेंट्स करते हैं। अभी हमने पिछले 3 महीने में 2 कैंपस प्लेसमेंट्स करी हैं। और सीनियर हायर के लिए लिंक्डइन पे डालते हैं। तो सीनियर फोक्स मोस्टली लिंक्डइन पे, 1-2 और प्लेटफॉर्म्स हैं वेल फाउंड वगैरह, उनके को करते हैं। तो अभी वो थोड़ा सा और मुझे रिसर्च करके एक्सपैंड करना है कि कैसे कर सकते हैं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਟੈਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਊਗਾ ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ करना ਚਾਹੂਗਾ। हाँ, तो मुझे नहीं लगता मैं टीम में, मेरी अभी भी हमारी जो टीम है ना, अगेन आई डोंट नो हाउ वी गॉट लकी, बट एक एक बंदा अपना एक ओनरशिप से काम करता है। और वो ओनरशिप ही सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है कि ये बंदा, अब मुझे नहीं फर्क पड़ता ये अपने लिए काम कर रहा है, ये मेरे लिए नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी तो अपने लिए कर रही हूँ। मैं कौन सा किसी और के लिए कर रही हूँ, वो भी अपने लिए करना चाहिए। तो कंपनी की ग्रोथ 100% रिफ्लेक्ट करनी चाहिए एम्प्लॉइज की ग्रोथ पे। अदर वे राउंड नहीं हो सकता। नो, मेरे पापा बोलते थे कि बिजनेस हमेशा विन विन होता है। अगर आप भी जीते और मैं भी जीती तो ही जीते। अगर आप हार रहे हो और मैं जीत रही हूँ तो वो 1 टाइम ट्रांजैक्शन होगा, 2nd टाइम होगा नहीं वो ट्रांजैक्शन। तो विन विन होना चाहिए हमेशा, एम्प्लॉइज एंड कंपनी, कस्टमर्स एंड कंपनी, इन्वेस्टर्स एंड कंपनी। द मोमेंट ये सारे लोग जीत रहे हैं, आपकी कंपनी जीत जाएगी। जहां इनमें से एक भी हारना शुरू हुआ, आपकी कंपनी नहीं जीत पाएगी। तीनों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਰੂ। ਲਾਈਕ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਵੀ, ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸੋਚਣੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਨ ਵਿਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਲਈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। नहीं हो, ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸੋਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸੋਚਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਪੀਓ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਟਾਰਗੇਟ? हाँ, मतलब आईपीओ ही टारगेट है। कितने साल में होगा पता नहीं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, आई डोंट नो। आई एम हियर फॉर द लॉन्ग गेम। हम तो यहाँ लॉन्ग गेम के लिए हैं, जब भी टाइम लगेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੂੰਗੀ ਇਕੁਇਟੀ, ਬਾਕੀ ਡਾਇਲੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ नहीं। तो ना बहुत ही वैसा क्वेश्चन है। अगर मैं पैसे की बात करूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पास 100% शेयर है, बट मेरी कंपनी की वैल्यूएशन ही अगर 1 करोड़ 1 करोड़ है, तो मेरी 1 करोड़ है। मेरे पास 1% शेयर है और मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 1000 करोड़ है, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा है। तो दैट्स अ सेपरेट लाइन ऑफ थॉट कि मेरे पास कितना है। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है फंडामेंटली, और इन्वेस्टर्स भी इस पे एम्फसाइज करते हैं कि फाउंडर्स के पास ना
ब्रॉडली 30-40% रहना चाहिए। आपका एक वो ड्राइव बना रहता है कि अभी भी मेरा है, वरना वो वाली जो एक फीलिंग होती है ना कि ये मेरा है, वो खत्म हो जाती है। और जब वो फीलिंग खत्म हो जाती है तो फाउंडर्स एक ऐसी प्रजाति है कि वो काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मैंने बनाया है, ये मेरा है, हमारा एफर्ट है। व्हेन आई से मेरा, इट्स नॉट अनूभी, इट मीन्स टुगेदर एज अ कंपनी हमने मिलके, एज अ टीम हमने मिलके बनाया है, ये इंडिविजुअल तो बना ही नहीं सकते। तो वो फीलिंग अगर खत्म हो गई जिस दिन, उस दिन कंपनी नहीं चल पाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ब्रॉडली वो मेंटेन कर पाएं, बट अगर कंपनी के लिए ज़रूरत है कि नहीं हमें और फंड रेज करना है और उसके लिए हमें डाइल्यूट करना पड़ेगा, तो वो भी कर देंगे। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆਈਪੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਓ, ਸਕੇਲ ਵੱਲ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਆਈਪੀਓ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ डिसएडवांटेज नहीं लगता हैगा? मतलब एक्चुअली आप देखो ना, आप उस पॉइंट पे बात कर रहे हो जब कंपनी ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि आई एम श्योर हमारे बोर्ड पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग उससे पहले ही आ जाएंगे। उससे पहले ही हमारा डिसीजन सिर्फ मेरा और मेरे को फाउंडर का नहीं रह जाएगा, सब लोगों का हो जाएगा। तो वो सिर्फ आईपीओ के पॉइंट नहीं है, वो तो आप जिस दिन सीरीज बीसी कर लोगे, आपका बोर्ड में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स और लोग होंगे जो आपकी बात शायद ना माने, क्योंकि अल्टीमेटली आई एम टू थिंग्स, आई एम अ डायरेक्टर, आई एम ऑन द बोर्ड, मैं वो भी हूँ, एक मैं डायरेक्टर हूँ, एक मैं कंपनी की सीईओ। सीईओ मेरा एग्जीक्यूट मतलब काम है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सो आई एम वर्किंग। अगर मैं सीईओ नहीं भी रही, मैं फिर भी डायरेक्टर रह सकती हूँ। अगर मैं डायरेक्टर नहीं रही, मैं फिर भी सीईओ रह सकती हूँ। दोनों चीजें हो सकती है ना। तो एक तो ये आपस में इंटरचेंजेबल है। मुझे नहीं लगता आईपीओ से या उससे पहले फर्क पड़ता है। अगर 4 इन्वेस्टर्स मुझे चैलेंज कर रहे हैं किसी चीज के लिए, या बोर्ड के डायरेक्टर्स ये जो चैलेंज कर रहे हैं, तो या तो मैं गलत हूँ या वो गलत है, और वो कभी भी हो सकता है। वो आईपीओ से बहुत पहले भी और आईपीओ के बहुत बाद भी, डज नॉट मैटर। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਣੂਗੀ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ अर्ਲੀ ਮੂਵਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਟੈਕ ਕੰਪਨੀ टेराफैक्ट सून। थैंक यू सो मच। कॉम्पिटिटर्स हैं, कम है, बट हम शायद बीट करेंगे। करेंगे, ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। लगा के इट वाज एन ऑनर। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।